بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعامة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين الرحمة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطردي نبينا ومولانا ومولانا والهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد هذه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين في يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو يهدي الصادقين والقائلين وقوله الحق قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وخير مني وانا من الحسين اللهم صل على محمد حضور کرام نور مجسم سرکار دو عالم لولا کہ لما خلقت الافلاق وما ينطق عن الهوى كمثله وہ رسول جسے کبھی طه کہہ کے پکارا گیا، وہ رسول جسے کبھی مزمل کہہ کے آواز دی گئی، وہ رسول جسے کبھی مدثر کہہ کے یاد کیا گیا، وہ رسول سردار انبیاء، وہ رسول سردار اوصیاء، وہ رسول تمام نبیوں کے بعد میں آیا، وہ رسول فرما رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزو، نواسا نانا سے ہو سکتا ہے مگر نانا نواسے سے، اور فرمائیے گا اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک راست لگایا، امام حسین نے اسے خون دے کر پایا، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے دین اسلام کو پھیلایا، امام حسین نے خون دے کر دین اسلام کو بچایا۔ اگر رسول خدا نہ ہوتے تو دین اسلام نہ پھیلتا، اور اگر حسین نہ ہوتے تو دین اسلام مٹ جاتا۔ حسین کی عظمت کیا ہے؟ اگر یہ بچے جو کچھ ضد کر دیتے ہیں اور ماں کہہ دیتی ہے تو اسے ماں نہیں بلکہ اللہ بھی پورا کرتا ہے۔ حوال پڑھیے دونوں بچے ضد کرتے ہیں، اماں کل عید کا دن ہے، تمام بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا کہ بنت رسول نے، نبی کی بیٹی نے لباسوں کو کسی لڑکے کی یہاں دیے ہوں۔ جب بچوں نے ضد کی تو ماں نے کیا کہا بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں ضد مت کرو، صبح تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ تو یہ فرمائیے گا جب فاطمہ رہنا بچوں سے کہہ رہی تھی تو اللہ غور سے سن رہا تھا۔ جب ہوا نمودار ہوئی ایک موٹاوا اللہ نے آواز دی، رضوان جنت ظہرا، رضوان جنت آیا، ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار کیا حکم ہے؟ کہا یہ لباسوں کو لے، اور لینے کے بعد در فاطمہ پر جا اور وہاں دیکھیا۔ توجہ فرمائیے گا، رضوان جنت فرشتے پہ سوار ہے، لا تعداد، کوئی گنتی نہیں، مگر رضوان جنت جو فرشتہ ہے یہ 70,000 ملائکہ کا سردار ہے۔ لباس کو لیا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ اللہ نے آواز دی ٹھہر گیا، کہا واپس آیا، پروردگار کا حکم ہے، کہا لے تو آ رہا ہے مگر اپنے کو رضوان جنت مت کہلوانا۔ توجہ، اپنے کو رضوان جنت مت کہلوانا۔ کہا پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے بنت رسول نے کہا ہے کہ صبح کو کپڑے درزی لے کر آئے گا، رضوان جنت نہیں۔ توجہ، لباسوں کو لیا، لینے کے بعد کہا پروردگار کیا در فاطمہ پر میں جا کر جھوٹ بولوں؟ اللہ نے آواز دی، اے رضوان جنت تیرا جھوٹ بولنا مجھے منظور ہے مگر فاطمہ کے کلمات میں ذرہ برابر فرق آ جانا منظور نہیں۔ لباسوں
को लिया और लेने के बाद जब हाथ वहां पर आया, आने के बाद आवाज दी, अंदर से आवाज आई, मन था आने वाले तू कौन है? काना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का रज़ी हूँ, मैं आवाज दूंगा रिजवान जन्नत, तू मासूम है, बेगुनाह है, तू मासूम होने के बावजूद दरे हाजमा पर झूठ बोल रहा है तो अजब नहीं, आवाज रिजवान जन्नत है, अल्लाह बुलवा रहा है तो बोल रहा हूँ। तो जो हो जाइएगा, दोनों लिबासों को दिया, बिन्त रसूल ने दोनों लिबासों को एक तख्त में रखा और रखने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया, अहल तुम रंग कैसा पसंद करते हो? का मरहब, हुसैन तो का सुर। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का नबी आ गया, ये मंजर देखा, रोना शुरू कर दिया, बेटी हवाल कर लिया, बाबा जान आज तो ईद का दिन है, आज रोने क्या मकसद है? कहा बेटी फातिमा तुम्हें नहीं मालूम, इमाम हसन ने रंग इसलिए पसंद किया कि जहर दगा से शहीद किए जाएंगे, इनका रंग अवलग होगा, और इमाम हुसैन ने सुर्ख रंग इसलिए पसंद किया कि ये तलवार से करबला में शहीद किए जाएंगे। उसके बाद दोनों बच्चों ने लिबासों को पहना और पहनने के बाद ईदगाह रसूल खुदा ले चल दिए। कुछ दूर बच्चे चले, चलने के बाद कहते रमजान अब बच्चों के पास सवारी मौजूद है, हमारे पास तो सवारी मौजूद नहीं है। कहा बेटो मेरे कांधों में सवार हो जाओ, समझे फरमाइएगा। दाहिने कांधे पर इमाम हसन को बिठाया और बाएं कांधे पर इमाम हुसैन को बिठाया। अभी रसूल खुदा को दूर जाए, बच्चे कहते हैं नाना जान हर बच्चे के हाथ में अपनी सवारी की निहार है, तवज्जो, हमारे हाथ में कोई निहार नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपनी जुल्फे बच्चों को पकड़वाई, पूरा अल्लाह का हुक्म आया, जिब्रील आए, ऐ रसूल अगर हसन मोड़े तवज्जो फरमाइएगा तो मुड़ जाना, हुसैन मोड़े तो मुड़ जाना, अजमत इमाम हुसैन समझिए। रसूल खुदा ने सुनी वही, इमाम हसन इमाम हुसैन सवार है तो तारीख बनाती है कि इमाम हसन ने 70 मरतबा मोड़ा, रसूल खुदा मुड़े, अल्लाह को हुक्म था। 70 मरतबा इमाम हुसैन ने मोड़ा, रसूल खुदा मुड़े। मैं आवाज दूंगा या नबी अल्लाह, बच्चों के कहने पर आप बोल रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, तवज्जो, कि जिधर हसन मोड़े मुड़ जाना, जिधर हुसैन मोड़े मुड़ जाना। मैं यहाँ पर ये कहा करता हूँ हमारे और आपके बच्चे गेंद और गोलियों से खेला करते हैं, अली के बच्चे अल्लाह की मशहूर से खेला करते हैं। आवाज पढ़िए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरे, 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 नारे सलवात। ये इमाम हुसैन का मर्तबा है। और विलादत के बारे में सुनो, जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या फरिश्तों अब जाओ अल्लाह के नबी के यहाँ मुबारकबाद दे के आओ। का परवरदिगार क्यों? इसलिए नबी के नवासे की विलादत हुई है। तमाम फरिश्ते हुजूम पे हुजूम। जब जिब्रील अपने लश्कर को लेके आ रहे थे तो देखा सहरा में फितुरुस पड़ा हुआ है। जो लोग हमसे कहते हैं कि तुम बीमार हो, गहवारे से मत हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, सुनो ऐसे ठीक होते हैं। जिब्रील रुक गए, फितुरुस तो यहाँ कैसे पड़ा है? कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो, क्या कयामत आ गई, हुजूम पे हुजूम कहाँ जा रहे हो? कहते हो मैं नहीं मालूम, अल्लाह के नबी की विलायत हुई है, हम हर मुबारकबाद कहने के लिए अल्लाह के नबी के यहाँ जा रहे हैं, तेरा क्या हाल है? कहे जिब्रील हुक्म परवरदिगार समझने में रास्ते आखिर हो गई, तो जो फरमाइएगा हुक्म परवरदिगार समझने में रास्ते देर हो गई, अल्लाह ने बालों पर ले लिए। कहा हो सके हमें भी लिए चलो, तो निकाला। जिब्रील ने हुक्म दिया, फिर उसको लेके गए, अल्लाह के नबी को सलाम किया, तमाम फरिश्तों ने सलाम करने के बाद मुबारकबाद पेश की। अल्लाह के नबी ने गौर से देखा और देखने के बाद कहा जिब्रील ये कौन मलक है? कहा या नबी अल्लाह फितुरुस है। क्या हुआ?
क्या हुक्म परवरदिगार समझने में जरा सी आखिर हो गई, देर हो गई। अल्लाह ने बालों पर ले लिए। जब मलाइका मुबारकबाद दे देंगे तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, फिर उसको उठाओ और उठाने के बाद हुसैन के गहवारे से मत कर दो। तो जी फरमाइए, हुसैन के गहवारे से मत कर दो। ये नहीं कहा कि हुसैन से मत कर दो। फरिश्तों ने उठाया, उठाने के बाद हुसैन के गहवारे से मत कर दिया। जैसे मत किया बाल ऊपर आ गए। तो एक मर्तबा फिर कहता है अब हमारा मुकाबला कौन रखता है। जिब्रील ने कहा गरूर भरी बातें मत करो, हो सकता अल्लाह फिर ले ले। समझो, एक मर्तबा फिर ने कहा जो अल्लाह ने दिया था वो ले सकता है, जिसे हुसैन देते हैं उसे कोई नहीं ले सकता। हमें हुसैन ने दिए हैं, अब कोई नहीं सकता। ये कहता हुआ था ना अना आतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का परवाह करता हूँ। तो अजीजो हुसैन ने जिसको जो अता कर दिया वो वापस नहीं लेते। इब्राहिम खिदमत रसूल में आया और आने के बाद कहा कि या नबी अल्लाह काफी साल हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होती। तो आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमें हायबे औलाद आ दे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कुछ देर की तो वही नाज़िल हुई कि रसूल अल्लाह का ये हुक्म है कि राही से कह दो तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा है अभी वही आई थी, अभी जिब्रील आए थे, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। एक मर्तबा राही रोता हुआ दरबार नबी से जा रहा है। रास्ते में इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। मौला ने कहा कि राजे तो उन्हें क्या सबब है कि तुम्हारे नाना के पास आया था औलाद के सिलसिले में, मगर तुम्हारे नाना ने साफ कह दिया कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। इमाम हुसैन का मशवरा है कहा नाना के पास उस राहिब को मौला लेके आए और लाने के बाद कहा या नबी अल्लाह नाना जान क्या राहिब की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। कहा अल्लाह अभी जिब्रील आए थे और आने के बाद ये फरमा गए हैं कि राहिब की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। एक मरतबा होता है क्या कहते हैं नाना जान मैंने राहिब को एक बेटा अता किया, मैंने राहिब को एक बेटा अता किया। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा हुसैन राहिब की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हुसैन ने क्या कहा नाना जान मैंने राहिब को 2 बेटे अता किए, यहाँ तक के रसूल खुदा ने मना किया, हुसैन ने अता किया, हुसैन ने 7 बेटे राहिब को अता कर दिए। एक मर्तबा जिब्रील आए, आने के बाद कहा अल्लाह के नबी अल्लाह का ये हुक्म है कि खामोश हो जाओ, अगर इस वक्त हुसैन राहिब को सारी कायनात अता कर देंगे अल्लाह इनकार नहीं कर सकता। अब राहिब चलने लगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा राहिब हम तेरे यहाँ एक दिन मेहमान की शक्ल में आएंगे। फरमाइएगा तारीफ तो जनाब कासिम के महाज हो चुके। एक मर्तबा मगर आएंगे बड़ा खुशबू राही मौला आप घर भी आइएगा, मगर का आएंगे मगर तुझे जहमत नहीं देंगे, तेरे यहाँ मेहमान बनकर आएंगे मगर तुझे रहमत नहीं देंगे। मगर राहिब ये बात समझ न सका कि मेरे मौला आका ने आखिर में क्या कहा कि तुझे रहमत नहीं देंगे। चला गया राहिब। अल्लाह ने 7 बेटे अदा किए। जमाना बदलता रहा, जमाना तब्दील होता रहा। हुसैन ने मदीने को तर्क किया, तर्क करने के बाद मक्का आए, मक्का से करबला गए, करबला जाने के बाद शहीद हो गए। जब ये काफिला कूफे में आया और आने के बाद ये मिलता है तारीख में एक मुकाम पर रोक दिया गया। राहिब अपने घर से निकला, किसी काम के लिए निकला और निकलने के बाद जब वहां से गुजरा तो एक सर से आवाज आई राहिब तुझे हमारा सलाम, राहिब तुझे हमारा सलाम। एक मर्तबा राहिब ने चारों तरफ देखा और देखने के बाद तो समझ न सका कि ये सर हमें सलाम क्यों कर रहा है। उसके बाद फिर आवाज आई। जब 3 मर्तबा ऐसा हो गया तो कुली के पास आया और आने के बाद कहा ये सर हमें 1 रात के लिए दीजिए, जितने पैसे
जितनी रकम तू मांगेगा हम देने के लिए तैयार है। पैसे लेके उस हर को लेके जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने देखा और देखने के बाद कहा ये तू किसका हल लाया है। एक मरतबा रहीमदार बोलने लगा कहा बीवी हमें नहीं मालूम ये किसका हल है। जब इस हल के पास से मैं गुजरा तो इस हल ने मुझे सलाम किया है। किसी नबी मासूम का हल मालूम होता है। अच्छा लाया और लाने के बाद एक हुजरे में सर इमाम हुसैन को रख दिया। दूसरे हुजरे में दोनों मियाँ बीवी हुजरा बंद करके सो गए। एक मरतबा मुअज्जिमा की आधी रात के बाद आंख खुली तो क्या देखा कि पूरे घर में रोशनी फैली हुई है। आसमान से कुछ हमारियाँ उतरती हैं। उसमें से एक बीवी एक कहकर रोती है हाय हुसैन तुझे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। एक मरतबा राहिब की बीवी ने राहिब को उठाया अरे राहिब ये तू किसका हल लाया है। जब से सर हमारे घर में आया है पूरे घर में रोशनी फैली हुई है और आसमान है कुछ हमारियाँ उतरी है और उसमें से एक बीवी ये कहकर रोती है कि आए हुसैन तू आए हुसैन तो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा हैर कर दिया गया। एक मरतबा राहिब ने कुफल को खोला। खोलने के बाद हुजरे में पहुंचा हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद कहा है सर तू बता दे तू किसका है। मगर सर इमाम हुसैन से कोई जवाब न आया। एक मरतबा एक बेटे को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहा अरे सर तू बता दे तू किसका है। तुझे एक बेटे का वास्ता सर हुसैन से कोई आवाज आई। जब हाथों बेटे सर हुसैन के सामने खड़े कर दिए और खड़े करने के बाद कहा अरे सर बता दे तू किसका है। एक मरतबा सर हुसैन से आवाज आई अरे राहिब तूने नहीं पहचाना मैंने वादा किया था मैं तेरे यहाँ आऊंगा मैं नवासे रसूल इमाम हुसैन बस इतना सुनना था। एक मरतबा राहिब रोने लगा। बीवी को बताया बीवी ये वही फर्जंद रसूल है कि जिन्होंने हमें हाथ बेटे अदा किए थे। एक मरतबा राहिब ने कहा कि बेटा खत्म हो जाए मगर सर इमाम हुसैन बच जाए। एक बेटे का गला काटा। काटने के बाद होली को दिया। उसने कहा ये हुसैन का हल नहीं है। दूसरे का काटा यहाँ तक के हाथ और बेटे मौला के नाम पर हवा कर दिए। एक मरतबा सर हुसैन से आवाज आई आए राहिब तूने अपना हक अदा कर दिया मगर मुझे तू बचा न सका। अब मेरी गर्दन का खून इन बच्चों के गले में लगा दे अब ठीक हो जाएंगे। एक मरतबा राहिब सर को लेके चला। आवाज दे मौला जो आपने एहसान किया था मैं उसका बदला चुका न सका मैं मजबूर हो गया। मौला मेहमान तो बनकर आ गए। आपने कहा था रहमत नहीं दूंगा रहमत भी नहीं की। इन्ना